आँख उन्हें देख सकती हो, बाण भेद कर आ जाते हो, तो उन्हें लक्ष्य नहीं कहते। ये इतने सरल नहीं होते। मन को और उड़ाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो। Good morning, everyone. With immense joy and honor, we welcome you all to the valedictory ceremony of Samrat Uday 2025, the 5-day orientation program of Samrat Ashok Technological Institute, Vidisha. पिछले 4 दिनों में हमने ज्ञान, संस्कृति, संगीत, खेल और प्रेरणा की अनोखी यात्रा की है। जैसा कि कवि बच्चन जी ने कहा है, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। So, today is not just the closing program, it's the beginning of a new journey for all our freshers. On behalf of the entire organizing committee, I extend a warm welcome to our honorable chief guest, respected director sir, respected deans, faculty members, esteemed professors, and my dear fellow mates. In Indian tradition, every auspicious ceremony begins with invoking the blessings of Goddess Saraswati, the goddess of wisdom. वाणी की देवी का आशीष हो, ज्ञान का दीप सदा प्रज्वलित हो. So now we request our chief guest and honorable director sir and all the dignitaries to please come forward for the lamp lighting ceremony. सरस्वती वंदना। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, दिन दिन प्रतिक्षण प्रतिपल, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। हम माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। Now, it is the time to express our gratitude and respect through the tradition of bouquet felicitation. Flowers are the symbol of warmth, purity, and gratitude. जी हाँ, ये पुष्पगुच्छ सिर्फ फूल नहीं बल्कि हमारे स्नेह और आभार का प्रतीक है। तो चलिए बुके प्रेजेंटेशन के साथ हम अपने माननीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। Firstly, I request Honorable Director Sir, Dr. Yogendra Kumar Jain Sir, to kindly present a bouquet to our Chief Guest, Superintendent of Police, District Vidisha, Shri Rohit Kashwani Sir. थैंक यू सर। Now, I request Dr. Ashish Manoria Sir to kindly come forward and present a bouquet to our Honorable Director Sir. Director sir, your guidance is true light for all of us, and this bouquet is a humble token of our respect and gratitude. With this floral welcome, we once again express our heartfelt gratitude to our esteemed dignitaries. So, can we have a thunderous round of applause for our respected guests, please? Now, it's time to move towards the most awaited part of our ceremony, the speeches and addresses that will enlighten and inspire us. जी हाँ, जैसा कि कहते हैं, बातों में वह ताकत होती है जो मन को छू ले और जीवन को दिशा दे।
तो चलिए आज के इस विशेष अवसर पर हमारे मान्यवर अतिथियों के विचारों से हम मार्गदर्शन लें। To begin with, may I invite Dr. Chandrapal Singh sir, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department, to kindly deliver the welcome address. Sir, your words will surely set the tone for this morning. Good morning to all. Today we are gathered here for valedictory function of Samrat Uday 2025, our 5-day orientation program for first year students. Over past 5 days, we have seen a remarkable journey filled with learning, motivation and bonding, and today we come together to celebrate its successful conclusion. I extend my warmest welcome to our chief guest of the day, Sri Rohit Kasbani sir, Superintendent Police of Vidisha, whose inspiring presence adds immense value to this occasion. I also take this opportunity to welcome our respected Director, Y.K. Jain sir, Dr. Y.K. Jain sir, Dean, HOD, faculty members, and most importantly, our dear students who are the true star of this program. Samrat Uday has been more than orientation program. It has been the dawn of new aspiration, new friendship, and new chapter in the lives of our freshers. As we conclude this wonderful journey today, we carry forward the spirit of learning and togetherness into the coming academic year. With this note, I once again welcome you all. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind words. Now, I invite Dr. Devendra Kumar Shaki, sir, Assistant Professor, Electronics and Communication Department, to present the report of Induction Program 2025, Samrat Uday. Good morning. I am on dais to present a brief report of Samrat Uday 2025, this 5-day orientation program for newly admitted students. I am happy to share that the institute successfully organized the 5-day orientation program from 18 to 22 August 2025 to welcome and guide the newly admitted student of the current academic session. This year, we have a total 924 new students, out of which approximately 825 students are enrolled in various BTech programs. As per AICT guidelines, the orientation program was conducted under the guidance of our respected director, Sir, Dr. Y.K. Jain sir, and the orientation program chairman, Dr. Ashish Manoria. The objective of such program was to familiarize student with academic structure, institutional facilities, rules and regulations, and to motivate them as they embark on his important journey. The day one was dedicated for inaugural and academic overview. The orientation program began with registrations of newly admitted students in morning session. This was followed by the inaugural functions was chaired by Dr. Rajiv Agrawal, life coach and motivational speaker and trainer. He delivered a inspiring talk and share 5 mantras for success with students. Later, Dr. Alok Jain sir, Professor and Dean Academic, addressed the student and provide detailed information about the academic process, examination system, and evaluation method of the institution. This was followed by the enlightening session by Dr. Manoj Datar sir, Professor and Head Department of Applied Science,
on the topic of role of science in daily life. A special interaction session was also conducted between the parents and director, sir. The day 2 was dedicated for innovation, Take. innovation and psychology and social awareness. The day 2 began the introduction with the startup cell and lab facilities that is available in our institute, presented by Dr. D.R. Sau. Another session, important sessions taken by the Dr. Sanjay Katare sir, Professor and Mechanical Department. The addicted brain, science of craving, compulsion and control. He explained the role of dopamine in the reward and pleasure, motivation and goal direction behavior. The next session delivered by the Prashant Chaube sir, Additional SP Vidisha, on the topic of the building a safer tomorrow, role of the youth in crime prevention. The day concluded with the information session and financial support of the institute carried by Dr. S.S. Golia and Usha Kiran Tigga madam. Next, day 3 was dedicated for training and resources and welfare schemes. The day 3 focus was on the training and placement conducted by Dr. Abhishek Mathur, Abhishek Dolly Panthi madam and Dr. Abhishek Jain. Dr. Abhishek saw the past record of the presentation, in the presentations, the placement. Followed by another session is taken by Dr. Sanjeev Kumar Sahu, librarian and his teams, and they explain the number of facilities available in our institute regarding the library. Next session conducted by the Dr. Manorama Saini and Monica Jain for student grievance redressal system. The day after that, the various club and facility available in the institute has been presented by the students. The day 4, the discipline and digital informations given started. The discipline sections started by Dr. Pramod Sharma sir, and has taken the session on the student discipline and pictorial board. Next session, Dr. Sunil Joshi, Assistant Professor, Department of CSE, has taken the comprehensive presentation on internet facilities and cloud computing facilities available in the institute. Afternoon session was taken on the drug abuse, hazards and prevention measure conducted by Sri Ritesh Ranjan sir, Zonal Director, Narcotics Control and Bureau, that Indore Bhopal region. And day 5 is dedicated for promoting the sports and physical well-beings. So we thank you all faculty member, staff, guest and speaker for their valuable contributions. We expect that our best of the student for success and fulfill the academic journey go ahead. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir, for giving us detailed glimpse of this memorable journey. नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से मुझे बचाओ त्राण करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। कोई जब न मदद को आए, मेरी हिम्मत टूट न जाए, जग जब धोखे पर धोखे दे और ठेस पर ठेस लगाए, इतने पर भी हार न मानूं, ऐसा नाथ विधान करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। अब समय है उन आवाज़ों को सुनने का जिनके लिए यह पूरा आयोजन किया गया है, हमारे नए प्रवेशित छात्र। Yes friends, we would now like to invite a few of our newly admitted students to share their feedback and experiences of Samrat Uday 2025. Your words will reflect the true essence and success of this orientation program.
Please give a huge round of applause for her. Good morning to all the dignitaries present here. I, Ananya Mishra from CSE branch blockchain first year, would like to give a feedback for the Samrat Uday program. I want to take a moment to express my gratitude and a feedback regarding the college orientation. Firstly, I would like to commend the organizing team for their exceptional efforts in making the event a success. The orientation was informative, engaging, and provided valuable insights into the college life. The sessions were well structured, the speakers were knowledgeable and enthusiastic. Some highlights of the orientation included motivational talks, information about the college, and many more real-life lessons, which gave us an enlightenment to move forward with a positive and a strong attitude. These sessions not only provided us with essential information, but also helped us to feel more connected to the college committee. Overall, I found the orientation a fantastic experience that helped me transition smoothly into the college life. Thank you everyone, and congratulations to the department, the committee, the organizing committee, faculty members, and especially the Mirage group for capturing each and every moment so beautifully. Congratulations for a successful Samrat Uday 2025. Thank you. Thank you so much, Ananya, for your feedback and experience sharing. I am Harshit Birla, CSE blockchain. जैसे कि इंडक्शन प्रोग्राम से मुझे ये पता चला कि जैसे कि कॉलेज में जो भी उपयोगी चीज़ों के बारे में पता चला। पहली बार जब मैं कॉलेज आ रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे कॉलेज में रैगिंग वगैरह होता है। जब सीनियर वगैरह ने बताया कि एंटी रैगिंग कॉलेज है तो मुझे मतलब ठीक लगा थोड़ा कि रैगिंग वगैरह नहीं होती है। और कॉलेज की क्लब वगैरह भी के बारे में बताया कि कौन कौन सी चीज़ों से एक्टिविटी के प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में बताया कि क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं कॉलेज से। थैंक यू। Thank you, dear students, for your heartfelt words. Now, with deep respect and immense honor, I invite our honorable chief guest, Mr. Shri Rohit Kashwani, Superintendent of Police District Vidisha, to kindly address the gathering. Your vision and guidance inspire each and every student of SCTI. ये सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के ओरिएंटेशन प्रोग्राम सम्राट उदय में यहाँ मंच पर उपस्थित कॉलेज के डायरेक्टर सर, समस्त फैकल्टी मेंबर्स और मेरे साथियों, ये जो आपकी जर्नी है जो कॉलेज की अभी शुरू हुई है, ये मैं देखता हूँ कि जैसे अपन रहते हैं अपने मदर फादर की एक छत्र छाया में, वहाँ से निकल के एक इंडिपेंडेंस की तरफ आ रहे हैं। जैसे एक बर्ड को कहते हैं ना कि उसके विंग्स लगने शुरू हुए हैं, अब वो नेस्ट से बाहर जा रहा है, उस तरह की ये जर्नी को एक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है ये। और उसमें आप बहुत अच्छी जगह आए हैं। ये कॉलेज एक हमारा बहुत ही पुराना कॉलेज है, इसकी अपनी लीगेसी है, वेल स्ट्रक्चर्ड है सारी चीज़ें, और बहुत अच्छे यहाँ से रिजल्ट्स भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को, स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में आए हैं, आप सभी को हार्टीएस्ट वेलकम, और कि आप बहुत अच्छी जगह आए हैं, बहुत अच्छे कॉलेज में आए हैं एंड अच्छा करेंगे आप लोग। फिर बात आती है कि मैं सोच रहा था ओरिएंटेशन प्रोग्राम है तो ऑलरेडी वैसे तो 4 दिनों में सब कुछ कवर हो चुका होगा कि क्या बोलें क्या बताएं। तो कुछ चीज़ें जैसे मैंने सोची कि एक जो मैंने जब इंजीनियरिंग की थी तो उस दौरान मुझे कुछ अच्छे गाइड्स मिले, उन्होंने बताया कि हाउ टू स्ट्रक्चर योर लाइफ एट कैंपस, मतलब आपके पास 3 साल या 4 साल हैं, उसमें क्या करना है, क्या सीखना है, क्या ज़रूरी है, वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है।
कॉलेज में जैसे आपके टेक्निकल एस्पेक्ट हैं और जो आपका स्टडीज़ है वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, उसमें आप लोग कोई कोताही नहीं बरतें। जो भी आपकी ब्रांच है उसके बारे में अच्छे से सीखें, वो सबसे ज़रूरी है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझसे ज़्यादा अच्छा आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सब बता सकते हैं, वो सिखा सकते हैं। बट अदरवाइज़ जो दूसरी चीज़ें हैं उनके बारे में मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। जैसे आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हुई, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हुई, और हाउ टू बिल्ड योर करिकुलम राइटिंग, कि आपको 4th ईयर के बाद जाके आपका रेज्यूमे कैसा हो, क्या करना चाहिए उसके लिए। तो जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो कई चीज़ें होती है। जैसे यहाँ जो हमारा जो लॉट बैठा है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत अच्छा बोलते होंगे, ऑलरेडी जिनकी लीडरशिप स्किल्स वेल ग्रूम्ड हैं और वो ऑलरेडी आगे करेंगे। बट कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको स्कूल लाइफ में हो सकता है उतना मौका नहीं मिला हो एक्सप्लोर करने का, या लीडरशिप स्किल्स का, पब्लिक स्पीकिंग का, या दूसरी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, कोई भी टीम का नेतृत्व करने का। तो वो चीज़ यहाँ पर कॉलेज में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको परस्यू करें, जो भी मौका मिले। पहली चीज़ है कि अपने मन में जो शर्म होती है और झिझक होती है वो निकाल दें, क्योंकि ये जो आगे प्रोफेशनल लाइफ है झिझक से नहीं चलने वाली है। ठीक है, मेरा भी बेसिक नेचर इंट्रोवर्ट था, बट धीरे धीरे ऐसे ही कुछ प्लेटफॉर्म आए, उस पर कुछ चीज़ें सीखने को मिली। तो एक कहते हैं ना कि दुनिया बड़ी जालिम है, तो जो बिल्कुल चुप रहता है, शांत रहता है, वो हमेशा दबता रहता है। तो अपनी बात कन्विक्शन के साथ कहनी चाहिए, नई चीज़ सीखनी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है झिझक निकालने के लिए कि आपकी जो सोसाइटीज़ हैं, डिबेटिंग सोसाइटी हो, कॉलेज का डिबेटिंग ग्रुप है, या आपकी जो मैथ्स में आपके मैथ सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, तो उन पोस्टों पर के लिए कंटेस्ट करें, उनके लिए आप जाएं, अलग अलग ग्रुप्स में जाएं। तो जितने ज़्यादा लोगों से हम बात करेंगे उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। कई ये मत सोचें कि कोई मुझे क्या समझेगा, अगर मैंने कुछ पूछ लिया तो लोग ये समझेंगे कि यार ये बेवकूफ़ है, इसको इतनी बेसिक चीज़ नहीं आती। देखिए, किसी को सब कुछ नहीं आता, मैं भी आज भी पूछता हूँ लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ये है कि आगे बढ़ने के लिए पूछना कोई बुराई नहीं है, बोलने में कोई बुराई नहीं है। बस ये चीज़ ध्यान रखें कि ऐसे अपशब्द ना बोल दें या ऐसी चीज़ ना बोल दें कि जिसको बुरा लग जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक राइट है, पर दूसरे की फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहली चीज़ ये थी। फिर जो अलग अलग ग्रुप्स हैं आपके, उनको आप एक्सप्लोर करें, जो आपका इंटरेस्ट बैठता है। हर सेमेस्टर में या हर ईयर में कोई ना कोई एक एक्टिविटी ऐसी आप चुनें जिससे आपका रेज्यूमे में एक तो वो आए एक्टिविटी, और उससे आपका एक्सपीरियंस भी बने। एक्सपीरियंस केवल सर्टिफिकेट लेने से नहीं बनता है कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया और हो गया काम। सर्टिफिकेट तो ऐसे ही साइन होकर मिल जाते हैं, और आजकल तो आप लोगों की जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, साइबर सिक्योरिटी, एआई की ब्रांचेस, सब आप लोग ऑनलाइन भी बना सकते हैं फर्जी सर्टिफिकेट। तो वो सर्टिफिकेट नहीं, प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस होता है दैट मैटर्स। तो उसके लिए ज़रूरी है आपका पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन में ज़रूरी नहीं है कि केवल आप किसी सोसाइटी के सेक्रेटरी बन जाएं, या उससे कॉलेज की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा मीडियम है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अगर कोई मुझे कहे कि गीता पढ़ने से पहले कि मैं खेलूं, तो मैं खेलना पसंद करूंगा, क्योंकि अगर मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही मेरा दिमाग स्वस्थ रहेगा और मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूँगा। तो कोई ना कोई एक आप स्पोर्ट्स पिक कर सकते हैं, वेदर इट इज़ बैडमिंटन या बास्केटबॉल, टेनिस, फुटबॉल, जो भी आपके, क्रिकेट, कोई भी, तो उसमें थोड़ा बहुत करते रहें, या योगा वगैरह भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इस चीज़ को एक परस्यू करें। फिर दूसरी चीज़, कुछ लोगों की हॉबी होती है म्यूज़िक वगैरह। कई बार होता है कि जैसे मैं भी सर्विस में आया, उसके बाद मैंने अभी आज से कुछ दिनों पहले ही पहली बार गाना गाया। मैं गाना गाता नहीं था, मेरी बहुत आवाज़ ख़राब थी, कोई दिक्कत नहीं। तो वो भी कोशिश कर सकते हैं सिंगिंग का या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का। तो एक वो है एस्पेक्ट। फिर कोई ना कोई सोसाइटी जो आपकी अलग अलग है,
उससे आप कोई हॉबी डेवलप कर सकते हैं, वेदर इट इज़ फोटोग्राफी और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर और दूसरी एक्टिविटीज़ ले सकते हैं, जिसमें ड्राइंग, स्केचिंग या अलग डिबेटिंग कोई भी, या ड्रामेटिक्स होता है, तो उस तरह की एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करें। फिर कुछ आपकी टेक्निकल सोसाइटीज़ होती हैं जो आपकी ब्रांच स्पेसिफिक होगी। जैसे कॉलेज में तो जो एक्टिविटीज़ होती है वो तो है ही, बाहर भी जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट के फेस्ट होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, रोबोटिक्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये प्लान करें कि हर सेमेस्टर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हमको करनी है जिसमें कुछ सीखने को मिले, कुछ एक्सपीरियंस मिले और उससे हम आगे बढ़ें, एक बेटर पर्सन बने। जो हम कल थे उससे एक स्टेप हम आगे जाएं। परफेक्ट कोई नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है यहाँ। मुझे कोई कहता है कि मैं कहता हूँ कि आज भी हम सीख ही रहे हैं, कोई इसमें सीखने में हर्ज नहीं है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो कहते ही रहेंगे, पर आपको करते जाना है। फिर कॉलेज में कई ऐसी चीज़ें भी आती है कई बार, जैसे आप किसी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के इफ़ेक्ट में आ जाते हैं या अल्कोहल अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़, कई बार ऐसी चीज़ें भी आती हैं, क्योंकि धीरे धीरे स्ट्रेस भी बढ़ता है। जब आप 3rd ईयर 4th ईयर में आते हैं, खासकर तब प्लेसमेंट की चिंता होती है, तो उन चीज़ों से पर्टिकुलरली दूर रहें, क्योंकि किसी भी तरह का नशा जो है वो आपकी हेल्थ के लिए भी हानिकारक है, साथ ही मेंटली भी लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक है और आपका करियर भी स्पॉइल कर सकता है। इस पे ऑलरेडी डिटेल्ड आपको लेक्चर मिल चुका है, तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। फिर बात आती है कि फर्स्ट ईयर जब आते हैं तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है सब चीज़ों में। फिर सेकेंड ईयर जब आते हैं तो आपकी स्पेसिफिक ब्रांच हैं, उसके आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके फील्ड्स एक्सप्लोर करें, उसकी इंटर्नशिप वगैरह कोई ना कोई करें। इंटर्नशिप ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज में 3rd ईयर के बाद कंपलसरी है तो तभी ही करनी है। सेकेंड ईयर में भी कोई प्रोजेक्ट है वो आप कर सकते हैं, अपने फैकल्टी मेंबर से इंटरेक्ट करें, उनके कोई रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे होंगे तो उनके बारे में आप सीखें। जैसे आपके यहाँ एमटेक या पीएचडी स्टूडेंट्स भी होंगे तो उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो बताएंगे, तो उस चीज़ों से भी आपका जो पर्सपेक्टिव है वो वाइडन होता है, उससे आपको सीखने को मिलता है। अच्छा, ये भी चीज़ चलती है, मतलब कई बार तो ये होता है, यही पता नहीं होता है कि ये चीज़ भी है क्या दुनिया में, कि ये भी सीखते हैं। आजकल वैसे इंटरनेट पर काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है, बट फिर भी किसी चीज़ के इन डेप्थ नॉलेज रखना और नई चीज़ में जाना, ये अपनी क्यूरोसिटी जो है उसको हमेशा कायम रखें, वो बहुत ज़रूरी है। फिर जो बहुत अच्छी चीज़ जो कॉलेज से सीखते हैं अपन, वो ज़रूर सीख के जाएं कि एक रात पढ़ते हैं एग्ज़ाम से पहले, वो प्रथा चली आ रही है इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो वही है कि एक रात में आपको कैसे एग्ज़ाम निकालना है या एक रात में आपको कैसे सारी प्रेजेंटेशन या सब कुछ तैयार करना है, तो वो अच्छी चीज़ मुझे लगता है कि सभी लोग सीख के ही जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो ये अच्छी चीज़ आप लोग भी सीखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि पूरी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती है जिनकी मोस्टली, पर ये इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हम कैसे तैयार हो जाते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं तब हमें आगे बढ़ना होता है और हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो अनप्लैन्ड सिचुएशन, अनप्लैन्ड इवेंट्स, उनके लिए तैयार रहना चाहिए और मुझे लगता है कि ये कॉलेज उस चीज़ के लिए बहुत ही शानदार हैं। फिर आपके जो कुछ लोग मोस्टली इंजीनियरिंग करेंगे, फिर दूसरे फील्ड्स के लिए आप लोग एक्सप्लोर करेंगे। क्या होता है कि ये आपकी शुरुआत है, एक जो मैं कह रहा था पहले भी, आगे जब हम जाएंगे तो हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट जो हैं वो सिविल सर्विसेज के लिए जाएं, कुछ स्टूडेंट्स जाएं जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए जाएं, कुछ लोग कॉरपोरेट में जाएं, कुछ लोग अपना स्टार्टअप खोलें। तो ये डिफरेंट फील्ड्स भी एक्सप्लोर करने चाहिए, कि ये पता होना चाहिए कि मेरा कप ऑफ टी क्या है 3rd ईयर 4th ईयर के बाद। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करें। पहले ये देखें कि हम लोग केवल ये नहीं कि जो है डायरेक्ट ही इन फील्ड में घुस जाएं। सबसे पहले आपकी जो इंजीनियरिंग है उस पर ज़रूर ध्यान दें,
क्योंकि कहीं भी आपका प्लेसमेंट होगा या आगे की चीज़ होगी उसमें पहले पूछा जाएगा आपके इंजीनियरिंग में अच्छा आपने क्या किया, कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद था और उस सब्जेक्ट में क्या है। तो बेसिक आपके जो इंजीनियरिंग का करिकुलम है उसके बारे में आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए और पता भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ें हैं जो आपका अगर इंटरेस्ट किसी और करियर पर्सपेक्टिव की ओर जाता है तो 3rd ईयर 4th ईयर ऑनवर्ड्स उसको भी परस्यू आप कर सकते हैं, साथ साथ उस पर ध्यान दें। फिर आपके कुछ सीनियर्स अच्छे होंगे, उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे इंटरेक्ट करके आपको पता चलेगा कि कॉलेज में ये और भी एक्टिविटीज़ चल रही, कैसे कॉलेज जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ NGO, वेदर इट इज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और दूसरे लोगों के साथ किन किन चीज़ों में जुड़ा है और क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही आपके कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उनके साथ हम ट्रैफिक रिलेटेड ऐप बना रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के, उनको हम फॉरेंसिक साइंस में भी इंटर्नशिप देते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी हम लोग इंटर्नशिप देते हैं, उनको भी सिखाते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं पुलिस से रिलेटेड। इस तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी हैं, उनकी भी जो एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो ये भी देखें कि आपके यहाँ इस तरह के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स आपको अट्रैक्ट करते हैं और किन पे आप कर सकते हैं आगे। तो ये सारी चीज़ देखना चाहिए। जो ये 4 साल का पीरियड है ये केवल स्टडीज़ और इसके अलावा आप लोगों को एंजॉय भी अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि कॉलेज का पीरियड हमेशा याद रहता है। मुझसे आज भी कोई पूछता है कि आपकी लाइफ के गोल्डन ईयर्स कौन से थे, तो मैं वही कहता हूँ कि मेरा जो इंजीनियरिंग का पीरियड था 2010 to 14 वो वाला सबसे अच्छा पीरियड था। तो यहाँ अच्छे दोस्त बनते हैं जो लाइफ टाइम आपके साथ रहते हैं, अच्छे फैकल्टी से कुछ फैकल्टी में मेंबर्स होंगे ऐसे जो आपके लाइफ टाइम के लिए गाइड बन जाएंगे, जिनसे कोई भी समस्या होगी आप उनसे पूछेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए भी है, एक अच्छी आपकी टीम बन जाती है, आप सारी चीज़ें डिफरेंट वैल्यूज सीख के जाते हैं, वो अच्छा मिलता है। फिर कॉलेज की कुछ एक्टिविटीज़ जैसे NCC वगैरह हैं, उनसे आप डिसिप्लिन सीखते हैं। और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, जो भी एक्सपीरियंस है, ये फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको डिविडेंड ज़रूर देगा। ये काम हमेशा आता है। ये कभी नहीं सोचिएगा कि ये हमने किया यार, ये एक्टिविटी फालतू रही, इसका क्या फ़ायदा होगा। आप कॉलेज का कोई एडवेंचर ग्रुप है, उसके साथ आप किसी ट्रैकिंग पे गए, वहाँ कुछ हुआ, वो इंसिडेंट आपको शायद फ्यूचर में कहीं भी यूज़फुल हो सकता है। किसी भी एक्टिविटी के लिए जो भी किया है, एक्सपीरियंस ऑलवेज काउंट्स, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं दोबारा कहूँगा कि सर्टिफिकेट ठीक है, देखने में अच्छा लगता है, वो आप ज़रूर रखें, बट उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। क्योंकि जो आगे किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो एक पूछते हैं आपने अच्छा क्या किया, तो ये एक बार में पकड़ में आ जाता है कि ये सामने वाला व्यक्ति फेक कर रहा है या वास्तव में इसके पास चीज़ें हैं, कि इसको सब्सटेंस पता है, इसने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है या नहीं की है, काम किया है या नहीं किया है। तो उस चीज़ में ज़रूर आगे पढ़ें। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल एक छोटा सा दूंगा। मैं अपने कॉलेज में एक हिमालयन एक्सप्लोरर्स क्लब चलता था, तो वहाँ उसका सेक्रेटरी था मैं। वहाँ पर हम लोग जो कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह थे, हम लोग उनको लिए ट्रैक्स ऑर्गेनाइज करते थे, राफ्टिंग ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते थे कॉलेज की ओर से। तो इस तरह का एक क्लब चलता था हमारे कॉलेज में। अब उसमें एक बार हम लोग ट्रैकिंग पर ले गए स्टूडेंट्स को। वहाँ हम गए थे, गंगा का ग्लेशियर है गौमुख, तो वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए हम गए थे। अब उसमें ग्लेशियर के नीचे तक तो पहुँच गए, बट वी वर नॉट प्रोफेशनल ट्रैकर्स। तो कुछ लोग चढ़ पा रहे थे, कुछ लोग नहीं चढ़ पा रहे थे। अब एज ए ट्रैक लीडर हमारी ये जिम्मेदारी थी कि सभी को साथ लेके चलें और रिस्क मिनिमाइज़ करें। पर यह होता है कि ये जैसे जो आपकी एज ए यंग एज में कि यार अब सामने दिख ही रहा है, ग्लेशियर के ऊपर चढ़ सकते हैं, पीक क्लाइंब कर सकते हैं, तो क्यों नहीं किया जाए, होता है उस टाइम के लिए। तो जो प्रोफेशनल ट्रैकिंग जो टीमें करती है, वो हमेशा रस्सियाँ वगैरह या प्रॉपर वो गाड़ने के इंस्ट्रूमेंट लेके जाती है। हम नहीं लेके गए थे, फिर भी जाना था, क्या करें, अब जाना तो है ही। अब हो गया है, टीम में कंसेंसस बन गई है, जाना है।
तो फिर हम लोग गए तो ह्यूमन चेन बना के गए, हाथ पकड़ के एक दूसरे का, और जो एक्सपीरियंस थे हम लोग वो हम सबसे आगे थे। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग हाथ पकड़ के अगर कोई फिसल भी रहा है ग्लेशियर के ऊपर तो उसको पकड़ पाएंगे, ठीक है। और ग्लेशियर के ऊपर रेत होती है, मिट्टी होती है, उसमें पता नहीं चलता है कहाँ फंस जाएं। तो इसलिए सिंगल सिंगल ना जाके एक साथ पूरी 20 लोगों की चेन बन के गई, और थैंकफुली हम लोगों ने ऊपर तक पहुंच गए आराम से। बट इससे ये सीखने को ये मिला कि एक तो आप एक टीम में कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए। एज ए लीडर हम सबसे आगे गए तो वो लीडरशिप स्किल्स डेवलप हुई रियल लाइफ सिचुएशन में। फिर एक थ्रेड था, वहाँ पे थ्रेड भी था, उसको हमने अपनी लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाने के लिए या टीम वर्क के लिए, जब सारी टीम चेन बना के गई साथ गए तो एक टीम वर्क की बात है वो, तो उससे हम लोग सक्सेसफुली पीक पर पहुँच गए। यही क्वेश्चन एक मेरे यूपीएससी के इंटरव्यू में मुझसे पूछ लिया कि गिव मी एन इंस्टेंस फ्रॉम योर लाइफ वेयर यू हैव कन्वर्टेड थ्रेट इनटू अपॉर्चुनिटी। तो थ्रेट था यहाँ एक्सट्रीम थ्रेट वाज थ्रेट टू लाइफ, और अपॉर्चुनिटी वाज टू शोकाज माई लीडरशिप स्किल्स एंड टू शो आवर टीम वर्क। तो ये इस तरह का इंस्टेंस था, लाइफ का इंस्टेंस था, कहाँ काम आ गया किसको पता। और उसी से ही मैं कहता हूँ कि मुझे जो आज यहाँ पे सर्विस में आ गया, नहीं तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंटरव्यू का बहुत इफ़ेक्ट होता है। और छोटे से अगर ये रियल लाइफ सिचुएशन में मुझे लगता है मेरे को 40 से 50 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए इस आंसर से केवल। तो ये है कि इस तरह आपकी लाइफ के जो भी इंस्टेंसेस हैं ना, उसको भी आप कहीं ना कहीं जॉट डाउन कर सकते हैं। कोई भी आपने सीखा कोई चीज़, डेली डायरी बनाना एक बहुत अच्छा मानी जाती है प्रैक्टिस। कई लोग डेली डायरी बनाते हैं, उसमें अपने इंस्टेंसेस लिखते हैं कि आज मैंने ये चीज़ की, ये चीज़ अच्छी करी है इसको। फिर कभी भी किसी एक्टिविटी की तैयारी करते हैं, कभी किसी भी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो वो अपनी डेली डायरी एक बार पलट लेते हैं, तो कई चीज़ें आपको ऐसी मिल जाती है काम की कि हाँ यार इसको यहाँ पे घुसा देंगे। तो आज का जो टाइम है वहाँ पे आप हर कोई अच्छा आंसर यहाँ बता देगा कि प्लेन वेनिला टाइप आंसर कोई भी बोल देगा। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, मुझे लगता है 60-70% से ज़्यादा, जिनकी इंग्लिश मेरे से बेटर होगी, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे से बेटर होगी। पर ये जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो आप जब धीरे धीरे खुद जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तभी मिलेगा। तो वो चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। आपके इंजीनियरिंग में जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी जो इंटर्नशिप हैं, आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं कॉलेज में, डिबेट्स होते हैं, जो डिफरेंट हॉस्टल की सोसाइटीज़ होती है, इंटर स्क्वाड इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वहाँ पे जो वैल्यूज़ डेवलप होती है वो हमेशा काम आती है, वो एक्सपीरियंसेस हमेशा काम आते हैं। साथ ही में जो लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में आए हैं। आप टेक्निकली तो सभी साउंड बिल्कुल होकर जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। साथ ही साथ एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे इंसान बनने के लिए और ये ज़रूरी है कि कोई हमसे कैसा भी व्यवहार करें, हमको पेशेंट हमेशा रहना चाहिए। हम किसी से दुर्भावना ना रखें, किसी को अपशब्द ना कहें, और विनम्रता हमेशा रखें। विनम्रता हमेशा काम आती है, पेशेंस हमेशा काम आता है। हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में सफरिंग हो, बट लॉन्ग टर्म में हमेशा फ़ायदा होगा। साथ ही जो वैल्यूज़ हैं आपकी, इथिकल वैल्यूज़, उन पे ज़रूर ध्यान दें। कई बार होता है कि कॉलेज में हम किसी और का प्रोजेक्ट चुरा लेंगे, दे देंगे, उस पर काम हो जाएगा। भाई आप दे तो देंगे पर आप सीख नहीं पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। असाइनमेंट्स में होता है कई बार कि ठीक है एक ही स्टूडेंट का असाइनमेंट, वो जो रूटीन चीज़ें होती है उसमें, बट जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसमें ज़रूर ये है कि जो आप खुद करते हैं उसी का फ़ायदा होता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी आप लोग ये एथिकल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करेंगे। साथ ही में कई ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं कुछ कॉलेजेस में जो साइबर फ्रॉड में इंडल्ज हो गए हैं, और स्टूडेंट्स और कुछ कॉलेजेस में ऐसा हुआ कि वहाँ से एक साइबर फ्रॉड करने की ग्रुप बन गए
और उसके बाद वहाँ लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो मुझे लगता है कि इस कॉलेज से ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। अभी तक तो यहाँ नहीं मिला है मुझे ऐसा इंस्टेंसेस, बट दूसरे कॉलेजेस में मिला है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसी कोई गलत गतिविधि यहाँ नहीं होगी। देन लास्ट में जो एक अच्छा सिटीजन होना हमें बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे आप इंजीनियर बन जाएंगे, एक अच्छे टेक्नोक्रेट बन जाएंगे, एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, बट एक अच्छा इंसान और एक अच्छा सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जाके आप लोगों में से सभी युद्ध में लड़ेंगे या फिर जाके हम लोग एनडीए में चल जाएंगे या फ़ौज में भर्ती हो जाएंगे, टेक्निकल जो होती है आर्मी में जाएंगे। पर जो आपकी ड्यूटी है, जो आप काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ईमानदारी से करें, निष्ठा से करें, बिल्कुल उसमें कोई कोताही ना बरतें कि हम कोई कमी रख रहे हैं। साथ में छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप जाते हैं कॉलेज के बाहर जा रहे हैं कभी, तो ट्रैफिक रूल्स का पालन करें ज़रूरी। माइंड यू, हमें लगता है कि ये छोटी सी चीज़ यार सभी तो नहीं कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है, फ़र्क पड़ता है। बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। और गांधी जी ने कहा भी है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जब आप चाहेंगे कि यार दूसरे लोग ढंग से बिहेव करें, तो हमें पहले ढंग से बिहेव करना होगा। कहीं कोई प्लास्टिक रैपर ना फेंकें, कहीं कोई गंदगी ना करें। जैसे आप अपने रूम को, आपके घर को साफ़ रखते हैं, वैसे ही आपके कैंपस को साफ़ रखें, उस चीज़ का ध्यान रखें। फिर आपका जो रिसोर्सेज, आपके जो पर्सनल रिसोर्सेज होते हैं, उनका आप ध्यान रखते हैं। पर जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, जैसे कॉलेज के जहाँ पानी है या बिजली है, तो उनको बचाने का ध्यान रखें कि अननेसेसरीली आपके रूम में फ़ैन वगैरह या लाइट ऑन करके चले गए, तो ये एक गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड रहता है। वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम लोगों को ये रिसोर्स मिल रहे हैं, और ये हमारे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किए हैं, उसका लाभ हमें मिल रहा है कि हम इतने कॉलेज में पढ़ने आए हैं। तो हम उनको लेट डाउन ना करें, जो अच्छी आते हैं वो ज़रूर सीख के जाएं। अभी कुछ लोगों को आपको लग रहा होगा कि यार ये तो क्या बात है, ये हमारी लाइफ है। आजकल वो चला है माई लाइफ वाला एक स्लोगन भी पहले चलता था, तो कि मैं जो भी करूं। बट ये ध्यान रखें कि आपके पास कुछ राइट्स हैं तो आपकी ड्यूटीज़ भी हैं, तो अपनी ड्यूटीज़ ज़रूर निभाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी ड्यूटीज़ हैं, उसको आप करेंगे तो केवल आपका ही नहीं, आपके पेरेंट्स का, आपके कॉलेज का, आपके टीचर्स का, सभी का नाम ऊंचा होगा। और आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your invaluable words. We all agree that these 4 years of engineering not only makes us engineers, but makes us multitasking and multi-talented individuals as well. I hope we learn confidence, conviction, adhering to your advice. सर, आदरणीय सर की बातें सुनकर मैं कुछ लाइनें आप सभी की नज़र कर रहा हूँ कि आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया, ठान लिया तो ठान लिया। To make this day truly memorable, we now move to the presentation of mementos. Mementos केवल एक स्मृति चिन्ह नहीं होते, बल्कि हमारे आभार और सम्मान का एक प्रतीक भी होते हैं। So, first of all, I request our Honorable Director Sir and Dr. Ashish Manoria Sir to kindly present a memento to our Chief Guest, Superintendent of Police, Shri Rohit Kashwani Sir. थैंक यू सर। इसके बाद मैं फिर से एक बार प्रार्थना करता हूं कि जो भी छात्र छात्राएं
आज फीडबैक देने के इच्छुक हैं वो मंच पर आकर अपना फीडबैक दे सकते हैं। Please give him a huge round of applause because it takes courage to come and speak on the stage. Hello, hello, hello. First of all, a very good afternoon to Honorable Chief Guest and respective Director Sir and all the professors and seniors and my fellow mates. I am Vardman Jain from IT branch Bhopal, and I want to just say that this orientation program is one of my bestest events which I will attend in my life. It is very well designed, well organized, and so useful and memorable for me. And I was saying thank you to all the professors for giving us this knowledge, this information, which will make our college life better. And thank you to seniors, which will feel us refreshed during our breaks. And that's it. Thank you all. Myself, Nitish Upadhyay from Artificial Intelligence and Data Science branch. मैं जब इस कॉलेज में मेरा पहला दिन हुआ तो मैं बहुत अंदर से घबराया था। मुझे लगा कि शायद ये कॉलेज मेरे लिए नहीं, शायद मैं इसमें अडॉप्टेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैंने पहला दिन अपना इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड किया, मेरे सीनियर्स के साथ जो इंटरेक्शन था और अलग अलग लोगों ने जो यहाँ पास ऑल डायरेक्टर प्रोफेसर ने अपना स्पीच दिया, तो मुझे लगा कि शायद मैं अपने जीवन में एक नया उद्गम इसी कॉलेज से ला सकता हूँ, जो दूसरे कॉलेज में पॉसिबल नहीं है। मैं अपने अगर मैं अपने जीवन में कुछ भी करूँगा तो इस कॉलेज को हमेशा धन्यवाद दूंगा। मैं अपने जीवन में एक छोटी सी कहानी से प्रभावित हुआ था, वह कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। हेलो, मैं अपने जीवन की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। शायद वे आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव ला दे कि आपका जीवन यहाँ खत्म होके एक नए जीवन की शुरुआत हो जाए, उद्गम हो जाए आपके जीवन का। पता, मैंने एक कौवे की कहानी सुनी थी, आपको भी सुनाता हूँ। एक कौवा था, डाली में बैठा, बहुत तेज तेज आंसू बहा रहा था। वहीं पास एक साधु जी जाते हैं। साधु जी बोलते हैं, क्यों कौवे, क्यों अपने एक कीमती वचन जमीन में डाले, ये बहुत अनमोल है। बोलता है साधु जी, ये अपना कोई जीवन है, कोई पूछता नहीं जब कोई खत्म हो जाता है ना साधु जी, जब खाने के लिए बुलाते हैं, बाकी तो मुझे कोई पानी तक नहीं पूछता, अपना कोई जीवन नहीं। साधु जी ने बोलते हैं, क्या बनना चाहेगा? वह बनाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। तो बोलते हैं साधु जी, जा बनाए तुझे, लेकिन जैसे आप लोग यहाँ एडमिशन लिए होंगे तो कोई ना कोई कंडीशन फुलफिल की होगी, वही कंडीशन साधु जी ने दे दिया। साधु जी ने बोला, जो बनेगा वो बनाऊंगा। बोला साधु जी, बतख बनना है, क्या लगता है? देख के उसको मजा आ जाता है साधु जी, आह क्या लगता है साधु जी, वही बनूंगा। साधु जी बोलते, जा तुझे बतख बनाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है, पहले बतख से जाके मिल के आ। बतख के पास हो जाता है, बोलता है, बतख भाई क्या लगते हो तुम? लगता है तुम सा ऐसे बन जाऊं, क्या सफेदी है साधु, क्या तो सफेदी है, क्या मजा आ गया साधु, बहुत सुंदर लगता है। बतख के पास जाता हुए बोलता है, बतख मुझे बनना है। तो पता है उसने क्या बोला? बतख ने, ध्यान से सुनिएगा, बतख बोला, क्या भाई तू अपने आप से खुश नहीं है? जानता है मेरी कोई इज्जत नहीं है, फोटो खींचने लोग आते हैं, पता ही नहीं चलता मेरी फोटो साला खींचे कि दूसरे की फोटो खींचे, पता ही नहीं चलता। दोनों जाते हैं साधु जी के पास। साधु जी के पास जाके वापस से वे बोलते हैं, साधु जी तोता बनना है, तोता क्या लगता है? आहा। उसके पास लोग तोते के पास जाते हैं, बोलते हैं, तोता क्या लगता है? साधु जी पता है आपको, उससे जो अमीर लोग होते हैं ना, काजू बादाम पिस्ता खिलाते, अपन को साला कोई पानी नहीं देता, बनेंगे तो तोता बनेंगे।
वापस जंगल में दोनों जन जाते हैं, तोता को देखते हैं, तोता नहीं मिलता। 1 बार 2 बार 3 बार जाते हैं, कहीं तोता नहीं। एक बाद में तोता मिलता है, बोलता है तोता भाई क्या लगते हो तुम, मजा आ गया तोता भाई, क्या लगते हो तुम, बनेंगे तो तोता बनेंगे। बोला, तोता बोलता है क्या भाई, तोता बनना है। अब तुम यहाँ आए, तुम मुझे नहीं जान पाए, तो अपनी भी कोई जिंदगी नहीं, ले चलो साधु भाई के पास। मैं अपने कहानी का समापन नहीं कहूँगा, ज़्यादा समय की कमी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। आज तक अपने लोगों ने सुना होगा चिकन बिरयानी, मुर्गा बिरयानी, क्या कभी कौवा बिरयानी सुनी है? यस और नो? यस और नो? लाउड से लाउड। यस। तो कौवा सबसे अच्छा, यू आर यूनिक। तुम अपनी एक इस जीवन में अलग पहचान बना सकते हो, जो पहचान बन सकती है सती कॉलेज के कारण। तो यू आर कौन कौन अपने जीवन में एक अलग अलग पहचान बनाएगा? अपने अपने हाथ है जब कर लो। कौन कौन अपनी अलग पहचान बनाएगा? यस, धन्यवाद। एक बार करतल ध्वनि से फिर से स्वागत करें। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप पहनावा मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ इस भूगोल से पहले ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। A very fanatic good afternoon to one and all present over here. Well guys, this is Shreya Mahajan and I am from Burhanpur, situated on the bank of Tapti River in Madhya Pradesh. And I have opted CSIOT in the renowned institute of Vidisha, that is SATI. And I am so overwhelmed, honored and privileged to join this kind of institute where we get to know how we should be dedicated, determined and devoted to our duties and our responsibilities. After joining this orientation program, we come to know the rule of CID, where C refers change the mentality of job seeker rather than job provider. Be a job provider. Where I refers that be an influencer. Because what is success? Success is like how influencer you are. The more you influence, the more you will succeed. Where D refers develop yourself as well as develop your nation. We, after joining this orientation program, we get a very supportive system by our seniors, by our volunteers, as well as a mentorship by our supportive teachers. We come to know the power of youth, because youth is the power of our country. What you do today will decide our tomorrow, because it is the youth only who can serve our nation in a proper manner. So we are so proud because we get the opportunity to get a drastic change and paradigm shift from this institute. So best of all, all the best guys, my classmates, my batchmates, to start a new journey. And it's absolutely a very fantastic, a very delightful session, and I'm so grateful to attend this kind of session. Thank you so much, guys. Thank you so much, Shreya, for sharing your experience so confidently. भारत माता की, भारत माता की। मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बट अपने जो एक्सपीरियंस है 4 डेज़ में, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहूँगी कि जब हो ऐसा आगाज़, तब आवाज़ में बुलंदी आ जाती है। जब
हो ऐसा आगाज़, तब आवाज़ में बुलंदी आ जाती है और मेरे यार मेरी सारी घबराहट दूर सा हो जाती है। और मैंने मतलब 4 डेज़ में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, बट ऐसा है कि मुझे 4 डेज़ में इतना समझ में आ गया कि हाँ स्टेज पे कॉन्फिडेंट होके कैसे बोलना है। एंड दीदी लोग को जब फर्स्ट डे देखा एंड सेकेंड डे देखा तो मेरे को लगा कि हाँ बोल सकते हैं कहीं भी जाके बिना थोड़ा सा घबराहट किए। बस यही थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेरा। थैंक यू। Good afternoon, everyone. My name is Anushka Rai from Narsinghpur, and I have recently joined CSE here. I'm really thankful to our professors, seniors, and our mentors who really organized a good session for us. Like when I didn't came here, I have no idea that we will get this good session here. And I'll keep it short. One main thing that really inspired me was that seeing our seniors managing everything very well. And overall, the session was very wonderful. And now I feel more confident and excited to start my journey here. Thank you. Thank you so much. Good morning, everyone, respected director, faculty member, and our respected senior and fellow friends. I am Anshita Jain, a first-year student of CSE Blockchain Technology. I feel truly grateful to be a part of this induction program. The section have not only introduced us to the college, but also inspired us to dream big and make the best use of every opportunity. The guidance from our teacher and the warm welcome from our seniors made us feel at home from day one. The activities were interactive, motivation, and helped us connect with each other. This program has given us confidence, clarity, and excitement for the journey ahead. I sincerely thank the management, faculty, and organization for making our beginning memorable. Every new beginning, endless opportunities. Let's make the most of it together. Thank you, everyone. Good morning, everyone. I am Harshita Bafna, AIADS branch. I am here for the feedback of orientation program. According to me, this program didn't need any feedback. It was glamorous, informative, and playful at the same time. Get to know about many things, about college, about clubs. The cultural program and the knowledgeable speeches from the great personalities was fantastic. This program gives us time to be frank with the college and the new environment. Overall, it was an amazing experience to experience this wonderful orientation. At last, I would like to thank to Director Sir, faculty members, and the seniors and my friends for this memorable welcome at SATI. Thank you. Jai Hind everyone. Good morning, respected Director Sir, faculty members, very helpful seniors, and my batchmates. I am here, Kumkum Raghuvanshi from Nateran district, Vidisha. I am a student of Computer Science and Internet of Things. I will give a grateful thank you to my seniors and teachers to organize this very beautiful and helpful orientation program. And I will say to my sister and my parents also thank you for supporting me to become a member of SCTI family. I remember that day जब मैं एडमिशन के लिए आई थी तब मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, बट तब कुछ टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिंग हैं. एज वेल एज माई फादर ऑल्सो सेड दैट देयर टीचर्स आर वेरी सपोर्टिंग. लास्ट में मैं मेरी लिखी 4 लाइनें बोलना चाहूँगी. ज़रूरी तो नहीं सबकी राहों में फूल ही बिछे हों, ज़रूरी तो नहीं सबकी राहों में फूल ही बिछे हों. जिसने चलना ही कांच कांटों पे सीखा हो, जिसने चलना ही कांच कांटों पे सीखा हो, उसे एक कांटा चुभेगा क्या. जिसने किस्मत को संघर्ष से बांधा हो, जिसने किस्मत को संघर्ष से बांधा हो, वो लकीरों को देखेगा क्या. थैंक यू. Hello.
Good afternoon, everyone present here. I am Tane Sharma from IT branch first year. I belongs to Gwalior. I just want to say that the program is very well organized, along with the great memorable and motivational talks, and along with the earnings and the adventurous things also. But I just want to say, we have also heard that Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deva Maheshwara, Gurur Sakshat Par Brahma, तस्मै श्री गुरुवे नमः. हम सब पढ़ेंगे तो है ही, सब लोग पढ़ेंगे, लेकिन आई जस्ट वांट टू से दैट माय ओनली विशेस, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट माय जर्नी विद ऑल योर ब्लेसिंग्स डियर टीचर्स एंड ब्लेस मी. थैंक यू. हेलो. सर्वप्रथम जगत वंदिनी माँ सरस्वती के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ. वो धरती जिसने संपूर्ण एशिया को सफ़ेद शेरों से अवगत कराया, वो धरती जो कभी किसी की गुलाम नहीं रही, वो धरती जिसने विश्व को तानसेन जैसे सुर सम्राट और वीरबल जैसे बुद्धिजीवी प्रदान किए, वो धरती जिसमें शासक की गद्दी पर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विराजमान है, वो धरती जिस पर मृत्युंजय और महाबली चिरौलानाथ की कृपा बरसती है, उस विंध्य की धरा, उस रीवा से अपनी प्रगति की असीम संभावनाओं की आस लिए आधुनिक काल का अर्जुन बनने में प्रयासर मैं शुभम त्रिपाठी AIML का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अपने समस्त गुरु द्रोणाचार्यों के चरणों में प्रणाम करता हूँ. जहाँ तक फीडबैक की बात रही तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के जिस प्रकार की व्यवस्था हमारे सीनियर्स, हमारी फैकल्टी ने की इस बरसात में जैसे मौसम में, जहाँ आवागमन में बहुत हमें समस्याएं हुई, परंतु जिस प्रकार का यहाँ व्यवस्था है बहुत अच्छा लगा हमें, और बहुत सी नई चीज़ें हमें जानने को मिली, किस प्रकार हमें स्टेज पर अपने आप को प्रेजेंट करना है, जिस प्रकार का सपोर्ट हमें दिखाया गया सभी फैकल्टी मेंबर की तरह. हमने जो पूछा उन्होंने बड़े प्रेम से बताया. ऐसा कुछ रैगिंग वगैरह का हमने कोई सीन देखा नहीं. सब बहुत ही अच्छा चल रहा है. और मैं सभी को ये एक बात कहना चाहूँगा अपनी तरफ से, यहाँ हमारे साथ बहुत से छात्र ऐसे बैठे हैं जिनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लो रहता है, स्टेज पे चढ़ने में उनको समस्याएं होती है, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के हैं. तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप एक बार यहाँ आकर परफॉर्म करके देखें. ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर नहीं सकते. और बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी पूरी फैकल्टी का और सीनियर्स का जिस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था की. धन्यवाद. Good morning, our respected directors, sirs, and all my faculties, teachers, and my fellow mates, and all respected my seniors. Myself, Priyansh Srivastava from CSE IoT from Chhatarpur. जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो मैं इतना एक्साइटेड नहीं था, बट जब मैंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स अटेंड किए, कल्चरल इवेंट्स देखे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा. सो लास्टली मैंने काफ़ी इन्जॉय किया. एंड लास्टली मैं बस थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे फैकल्टीज़ को और सीनियर्स को इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारा ओरिएंटेशन. थैंक यू सो मच. Hi, good morning to everyone. My name is Devansh Tiwari, and every respected faculty members and all the chief guests. And the feedback about college actually gave me I thought that it gave me so many opportunities. Like these 5 days of orientation have been really informative and helpful. The narcotic awareness session stood out of me the most. It gave us the important reminder about making responsible choices as a students. And I also appreciated the introduction to the clubs, especially Mirage and the photography club and the RDC club, the dance group. Both of these seemed full of energy and opportunities to explore our interest beyond activities and beyond academics. The cultural event were another highlight, adding liveliness to the program and showing us the talent and diversity of our college. Overall, the program has been a wonderful start, preparing us, guiding us, inspiring us for the journey ahead. Thank you so much.
honored dignitaries, faculty members, respected seniors, and my fellow batchmates. Greetings to everyone. I am Parth Likhitkar, a first-year student of branch Civil Engineering from Mandla. I would like to start my feedback by paying respect to Mata Saraswati by chanting Saraswati Vandana. Om Saraswati Namastombhya Varde Karma Rupini Vidya Arambha Karishyamini Siddhi Varvate Main Sada. Saraswati Mata ki Jai. Now I would like to start. The orientation was incredibly inspiring and educational. I gained a lot of knowledge about SATI's academic programs, facilities, and opportunities. I gained confidence and was motivated to work hard by the lectures and the sessions. I am very much excited to start my learning with the prestigious institute. Being a part of the esteemed institution makes me proud, and as a civil engineer, my goal is to use my career to serve the country so that every project I finish in the future honors SATI's name. Thank you so much, guys. A warm good afternoon to everyone present here, our respected chief guests, professors, and my seniors and my batchmates. So basically, the day one, when we have entered the gate of the college, हम सबके मन में एक ही डाउट्स, बहुत से कॉमन क्वेश्चंस और बहुत सी कॉमन डिस्कशंस जो थे हमारे बीच चल रहे थे, वो क्या था? वो ये कि हम कैसे कॉलेज में क्या होगा या हम कैसे परफॉर्म करेंगे, कॉलेजेस में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे पढ़ेंगे, ये सबके मन में था. तो ये जो 5 डे का ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ, इट वाज सो इंटरेस्टिंग. और जो स्टूडेंट्स जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं था, बेसिकली मैं खुद जिसने 3 साल से कुछ नहीं किया था, एकदम से आके मैंने इतने कॉन्फिडेंस से परफॉर्म्स किया, वो किस कारण? जो हमारे सीनियर्स, जो हमारी फैकल्टीज़, जिनने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली कि नहीं हम इस प्रोग्राम को अच्छा बनाएंगे, प्लस जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनने ये कॉन्फिडेंस दिखाया कि हम भी इस परफॉर्मेंस का अपने साथ साथ पूरा कॉन्फिडेंस से उसको क्लैपिंग्स की और ये सब. तो जो इस जो प्रोग्राम था, इसका जो बेसिक नीड्स थी वो क्या थी? जो हमारे क्लब्स हैं कॉलेजेस के, बेसिकली उनने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाने के लिए. और जो हमारा क्लब कॉलेज का मिराग क्लब है, उसने बेसिकली क्या किया है, जो हमारी ये इतनी फ्रूटफुल या स्वीट मेमोरीज़ हैं, जो आज के लिए हमेशा एक मेमोरीज़ जो हमारे पास रहेंगी, जब भी हम चाहेंगे उनको देख पाएंगे. I thank Mirag Club and all the clubs who have participated and all the students who have done the program. Thank you so much and thank you to the college. First of all, good morning to all the teachers and faculty members, and also hello to all my batchmates. I am Aditya Singh from IT branch, all you can see first year. I would like to give you a review of our college. I feel proud to be a part of SATI Vidisha, an institution with rich history and reputation. From the very first day to till now, I have experienced a positive learning environment. The faculty members are knowledgeable and approachable, and the campus provides a motivating academic atmosphere. The supportive interaction between seniors and juniors also makes us the journey smoother for freshers like us. अब कल तो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा था कि ये शायरी कर पाऊँ, बट आज मैं ये करता हूँ. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है. हवाओं से लड़कर भी जिसकी रूह में उड़ान होती है. ओवरऑल, I am thankful to be a part of SATI Vidisha, and I am confident that with continuous improvement and our college will reach even greater heights. Thank you. हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम आराध्य जगनवार है. मैं CSE IOT से हूँ, हरदा से. लेसर नोन जगह है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, एक स्मॉल सा डिस्ट्रिक्ट है. मैं जब यहाँ पे इसका नाम सुना था SATI का, मेरे मन में था कि SATI क्या होगा. एक विदिशा छोटा सा शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, ज़्यादा लेसर नोन जगह है, कैसा ही होगा. बट मेरे पापा ने बोला कि जाओ एक बार देखो समझो तो तुम्हें पता चलेगा क्या है. आज मैंने देखा 5 डेज़ के प्रोग्राम में जो सीनियर्स उनने परफॉर्म करा,
जो जूनियर्स ने परफॉर्म करा, जो कविता सुनाई, जो गाने सुने, तब मुझे पता चला कि इन्वायरमेंट ज़्यादा मैटर करता है rather than कॉलेज। तो मेरा है ना पर्सपेक्टिव जो बदला है SATI के बाद, उसके ऊपर मैंने कुछ लाइनें लिखी थी जो जिसका रेफरेंस था एक उड़ान मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, कभी आप देखिएगा। उसके ऊपर से मैंने कुछ लिखा था, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। सो इट्स लाइक कि SATI आपसे कह रहा है, अगर आपको लगता है कि SATI केपेबल नहीं है आपके जितना, तो SATI आपसे कह रहा है, जो लहरों से आगे नज़र देख पाते तो जान लेते मैं क्या सोचता हूँ, जो आंखें तुम्हें जो भेद पाती तो तुम समझ पाते मैं क्या देखता हूँ, अगर तुम जीवन की पहेली सुलझा पाते तो तुम्हें नजर आता मैं क्या देखता हूँ। थैंक यू एवरीवन। Good morning, everyone. First of all, I would like to catch your eyes, and I want to introduce myself in front of you all. That I am Misbah Asghar. I am a student of SATI College, and I am from CSE AIML. Today, I want to represent a poetry in front of you all, which is related to SATI. नई किताबें, नए ख्वाबें, नई किताबें, नए ख्वाबें, नया है कॉलेज, नया है आज, नया है कॉलेज, नया है आज, डर भी है और हंसी भी साथ, डर भी है और हंसी भी साथ, दोस्तों का मिलेगा अब नया साथ, दोस्तों का मिलेगा अब नया साथ। कल तक थे हम स्कूल के बच्चे, कल तक थे हम स्कूल के बच्चे, आज खड़े हैं सपनों के कदम पे, आज खड़े हैं सपनों के कदम पे। आशाएं उमंगे हौसला है साथ, आशाएं उमंगे हौसला है साथ, फ्रेशर लाइफ है बहुत खास, फ्रेशर लाइफ है बहुत खास। लेट अस कंटिन्यू दिस पोइट्री विद मोटिवेशंस। हम नए सफ़र के मुसाफिर हैं, हम नए सफ़र के मुसाफिर हैं, हौसलों की पहचान है, हिलेंगे संभलेंगे उठेंगे बढ़ेंगे, हिलेंगे संभलेंगे उठेंगे बढ़ेंगे, क्योंकि सपनों से ही तो जान है, क्योंकि सपनों से ही तो जान है। तूफानों से डरना क्या, तूफानों से डरना क्या, जब मंजिल नज़र आ रही हो, जब मंजिल नज़र आ रही हो, करम थाम लो हिम्मत का, करम थाम लो हिम्मत का, कहानी नहीं लिखी जा रही है, कहानी नहीं लिखी जा रही है। मैं खामोश नहीं, मैं खामोश नहीं, मेरी आवाज़ मेरी पहचान है, मेरी आवाज़ मेरी पहचान है। राहें मुश्किल सही पर जज्बा मेरी जान है, पर जज्बा मेरी जान है। आज मंच कल इतिहास होगा, आज मंच कल इतिहास होगा, मेरे शब्दों का हर अल्फाज खास होगा, मेरे शब्दों का हर अल्फाज खास होगा। एट लास्ट आई वॉन्ट टू से थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। First of all, good afternoon, all my honorable chief guests and committee members and faculties, and good afternoon, all my seniors. My name is myself Vivek Yadav from Morena branch CSE core. मैं फीडबैक में शॉर्टली सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैंने ओरिएंटेशन अटेंड की तो उससे मुझे इतना पता चला कि कॉलेज में हमको वो सब कुछ सिखाया जाएगा जिसकी हम में कमी है या एब्सेंस है। डेवलपमेंट स्किल्स कोडिंग वगैरह मतलब सब कुछ सिखाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड ज़्यादा फीडबैक के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बस 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। नए सफ़र हैं, नए रास्ते हैं, सपनों के संग उजले वास्ते हैं, कदम बढ़ाना है हिम्मत के साथ, मंजिल मिलेगी विश्वास के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Good afternoon, everyone. My name is Ansh Shukla. I am from Riva, branch CSE Cybersecurity. As a first-year student of Sati Vidsa, my experience has been very positive. The faculty is supportive and the campus provides good academic as well as intercircular opportunities. Overall, Sati Vidsa is a great place for learning and personal growth. I still remember in our very first workshop, senior explained how even a small innovation idea can turn into a big project. That inspired me a lot of focus on creative along with studies. इस इंडक्शन ओरिएंटेशन सफ़र में मैंने कुछ 2-3 लाइन लिखी हैं। सफ़र के राही सभी कुछ वक्त के होते हैं, सफ़र के राही सभी कुछ वक्त के होते हैं, कुछ मुस्कान देते हैं और कुछ दर्द देते हैं। सफ़र के राही कुछ वक्त के होते हैं, कुछ मुस्कान देते हैं और कुछ दर्द देते हैं। हर मुलाकात एक किस्सा है इस सफ़र का, हर मुलाकात एक किस्सा है इस सफ़र का, जो मिलते हैं वो लम्हे बन जाते हैं यादों का। थैंक यू एवरीवन।
Morning to all my dear friends, honorable teachers, HODs, and all my respected seniors. This is Krishna Yadav from VTech CSE. मैं कुछ नहीं बस ज़्यादा एक छोटी सी कविता कहना चाहूँगा कि मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अक्सर शीशे टूट जाते हैं पत्थर की चोट से, अक्सर शीशे टूट जाते हैं पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। आज हम लोगों ने यहाँ सीखा कैसे अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहा जाए, अपनी मंजिलों को पाया जाए और कॉलेज लाइफ को एंजॉय करा जाए, और कैसे एक अच्छा इंसान बना जाए। तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा हमारे सारे गेस्ट को जिन्होंने हमें इतना इंस्पायर करा और हमें एक कॉलेज लाइफ में सफल होने का मंत्र दिया। थैंक यू ऑल। Good afternoon to everyone present here, respected chief guest, respected faculties and respected seniors and all my fellow batchmates. So these past 5 days of the orientation was really a great experience for me, as I came to know about many things that I didn't know about before, and the information about the narcotics, like we should not abuse the drugs, etc., which was really good, and all the clubs like Mirage Club was really good, and most of the seniors really helped me, especially Akshat sir and Prem Gautam sir, Vikas Sen sir and Divyansh Soni sir, and yep, that's it. And it was a really life-changing experience, and I'm looking forward to study with all of you. Thank you. Thank you so much to all the students who shared their feedback and experiences with us. Now, with deep respect and immense honor, I invite our Honorable Director, Sir, to kindly address the gathering. Sir, your vision and guidance really inspires us, each and every student of SATI. Sir. Good morning, everyone. So the organizing team on the dais, senior faculty members and head of the departments in front of the dais, other faculty members, newly admitted first year students, and the club members or the volunteers of the institutes. तो आप सभी नवप्रवेशित छात्रों का संस्था में पुनः स्वागत है। सोमवार से या मंडे से आप सभी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आपने 4 दिन का पिछला जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसको अच्छे से एंजॉय किया। 4 दिनों में काफ़ी कुछ चीज़ें आपको एक्सप्रेस की गई, एलाबोरेट की गई। कुछ गेस्ट बाहर के थे जिसमें एनसीबी से भी आए थे, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट से आए थे, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी थे। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, यहाँ से जितने भी डिपार्टमेंट्स के या सेक्शन इंचार्जेस थे उन्होंने उसके बारे में आपको एक ब्रीफ कन्वे कर दिया है। बाकी आपके सीनियर्स लगातार आपके कांटेक्ट में है, जैसा आप लोग फीडबैक में बोल रहे हैं। फीडबैक में सारी तारीफ़ें ज़्यादा आई हैं, किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया किसी फैसिलिटी को लेकर या किसी इंसिडेंट को लेकर के। तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसने उस पूरे इवेंट को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। सो अ बिग हैंड। आई रियली अप्रिशिएट कि इतने ऑड कंडीशंस में, इतनी बारिश में उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को बहुत अच्छे से हैंडल किया। जो भी प्रॉब्लम्स आई उसको शॉर्ट आउट कर लिया जैसे वो कर सकते थे। अभी हमारा जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसके जो चेयरमैन है श्रीमंत सिंधिया जी हैं, उनकी कंसर्न हमेशा रहती है। मैं पिछले 1 वीक में काफ़ी समय से टच में हूँ। उन्होंने ब्लेसिंग ऑफ वर्ड्स भी 4 या 5 मिनट का वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पर भेजा था बना करके, और बहुत
कम टाइम में मैंने उनको जस्ट रिक्वेस्ट किया और उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करके भिजवा दिया था। तो इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी या इतने हाई स्ट्रेचर के बाद भी उन्होंने उसके लिए टाइम निकाला। इट मीन्स कि इंस्टीट्यूट के लिए उनकी कंसर्न रहती है। अभी जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर का रेनोवेशन देख रहे हैं, उसके जो ट्रिगर पॉइंट हैं, जिनको आज आना भी था लेकिन कुछ हेल्थ रीजंस के कारण हमारे जो ऑनरेबल सेक्रेटरी डॉक्टर लक्ष्मीकांत मर्केटकर साहब हैं, वो आज इस प्रोग्राम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। लेकिन ये सारे रेनोवेशन के लिए जो ट्रिगर किया है, इनिशिएटिव लिया है, ये उन्हीं के लिए है। तो मैं एज ए डायरेक्टर भी थैंक्स बोलना चाहूँगा उनको, और आप सभी से कि उनके लिए कि उन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया। सारे लोग एक बार ताली तो बजा सकते हैं। उन्होंने एक आप सभी के लिए शुभकामनाओं के लिए मैसेज भी कन्वे किया हुआ है, मेरे पास राइटिंग में भेजा है, लेकिन मैं उसको बिना देखे हुए बोल दे रहा हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। बीच में एनसीबी वाले भी आए थे, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, और ये मेरी एडवाइस भी है, इंस्ट्रक्शन भी है, कि किसी भी नशे से बिल्कुल दूर रहें। कभी भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं कोई एक्टिविटी लगती है तो विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर एंटिटी दे कैन इन्फॉर्म टू मी एज वेल एज द इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन। जिसके साथ वो कंफर्टेबल हैं, जिसके साथ आसानी से वो शेयर करते हैं, बिल्कुल शेयर करिएगा। और वंस अगेन आई रिपीट इट कि हॉस्टल के लिए मैंने डे 1 भी बोला था, उस पर लगातार काम हो रहा है, और जैसे ही फिनिश होगा तो आपको फुल्ली फर्निश्ड अच्छा हॉस्टल मिल जाए। रूम्स अच्छे से फर्निश्ड हो गए, कुछ आउटसाइड छूट गई है अभी, जिस पर कंटिन्यूसली वर्क हो रहा है। लेकिन बहुत फोकस नहीं होना चाहिए, हालांकि फैसिलिटी को लेकर के फोकस हमारा होना चाहिए अपनी प्रोफाइल को लेकर के, स्किल सेट्स को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो जितना भी फीडबैक मिला, जितने बच्चे अपीयर हुए स्टेज पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे फैकल्टी मेंबर्स को अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब आपको थोड़े से ऐसे बच्चों को हैंडल करना है जो प्रोएक्टिव हैं, और जब प्रोएक्टिव बच्चे होंगे तो उनको हैंडल करने के लिए आपको भी उतनी ही मेहनत और टाइम देना पड़ेगा। तो आई रियली अप्रिशिएट कि बच्चों ने स्टेज पर आकर के इतना बोलने का साहस किया, और कुछ ने तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म भी किया। मैंने प्रोग्राम्स तो अटेंड नहीं किए, लेकिन वीडियो रील्स या सोशल मीडिया पर जो सारा डला है या पर्सनली मुझे शेयर किया है, सो बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया सभी ने। सो ऑल द बेस्ट बच्चों सारे, कि आप सारे लोग परफॉर्म करें और इन फ्यूचर में जाकर के SCTI का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for your kind words. Now, after listening to all the feedbacks to our chief guest, to our honorable director, sir, I feel really happy to be part of this family. If ma'am allows, can I speak for 2 minutes, ma'am? Please. So, I have a short story for everyone. Actually, हर प्रोग्राम में ऐसा होता है कि हम मतलब जो चीज़ें होती है कि इंस्पायर करने के लिए की जाती है, बट आज मैंने पहली बार विटनेस किया है कि जो प्रोग्राम की ऑडियंस थी उसने हम सभी को इतना ज़्यादा मोटिवेट और इतना ज़्यादा इंस्पायर किया है। सो प्लीज़ गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड इफ़ पर्सनली मेरा बताऊं, मुझे धीरे मतलब कॉलेज की फैमिली में अपने आप को इंक्लूड करने में थोड़ा टाइम लगा। लाइक इट टुक कि 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर, फिर मुझे धीरे धीरे कॉलेज की फैमिली में इंक्लूजन फील होने लगा। बट इतनी बारिश में, इतनी ऑड सिचुएशंस में, अगर इतनी नंबर में आप लोग आए हैं तो आप लोगों ने ऑलरेडी एक फैमिली में अपने आप को इंक्लूड कर लिया है, बिकॉज फैमिली में यू ऑलवेज एडजस्ट एंड यू ऑलवेज अप्रिशिएट। एंड
क्योंकि आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, तो आप सभी को इंस्पायर करने के लिए एक छोटी सी पोइट्री है। इसका नाम है शून्य पे सवार हूँ। मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, मैं मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। कि ऊंच नीच से परे मजाल आँख में लिए, कि ऊंच नीच से परे मजाल आँख में लिए, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए। सूरज नहीं जो साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम को था ढल गया, वो रात से था डर गया, मैं तो जुगनुओं का यार हूँ, शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। और अब ध्यान दीजिएगा कि राम का सा तेज मैं लंकापति सा ज्ञान हूँ, कि राम का सा तेज मैं लंकापति सा ज्ञान हूँ, किसकी करूँ आराधना जो मैं सबसे महान हूँ। मैं काली का श्रृंगार हूँ, मैं जल प्रवाह निहार हूँ, मैं भागवत का सार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये 4 वर्षों की यात्रा आपसे SATI बनने की है। कल आपने रिस्पेक्टेड RMS सर की स्पीच में एक बात सुनी होगी कि आपका एकेडमिक्स आपके लिए 1 होगा, और आपकी ये एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ ये आप पर डिपेंड करती है कि आप उसमें कितने ज़ीरो लगा पाते हैं। तो ये आप सभी के लिए ये पूरा कॉलेज खुला है, अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कीजिए और इस 4 साल की जर्नी को मेमोरेबल बनाइए। As we come towards the end of this wonderful morning, it is time to express our gratitude to everyone who made Samrat Uday 2025 a grand success. So, to give a vote of thanks from the organizing committee, I would like to call upon Mr. Akshat Tiwari on the stage. Good afternoon, everyone. First of all, thank you so much. Respected Director, sir, respected Ashish Manoria, sir, and honorable all the faculties. My name is Akshat Tiwari, and I am a member of organizing committee. I am very thankful to all the members of the organizing committee, Miraj family, and discipline committee कि उन्होंने हमारे साथ मैनेज किया, उन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया, and a special thank to आयुष पुरोहित एंड ऋतुराज सूर्यवंशी कि उन्होंने लगातार कोऑर्डिनेट किया। हमारी पूरी टीम ने रात के 9-9, 10-10 बजे तक काम किया है कि ये इंडक्शन बहुत अच्छे से हो सके। डे 1 पे कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, बारिश हो गई थी तो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, बट हमने ट्राई किया कि नेक्स्ट डे अच्छे से हो। एंड आई थिंक यू ऑल हैव एंजॉयड इंडक्शन प्रोग्राम वेरी वेल। मज़े आए इंडक्शन में? श्योर? अच्छा लगा? जो भी चीज़ें हुई अच्छी लगी? हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हम हमेशा ऐसे ही काम करते रहेंगे। कल हम जाएंगे, हमारी जगह आप आएंगे, ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। एंड स्पेशल थैंक टू ऑल दी फर्स्ट ईयर। थैंक यू सो मच फॉर कोऑर्डिनेट विथ अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अब जी हाँ, आभार व्यक्त करना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह उन सभी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और कृतज्ञता की भावना है जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। For the vote of thanks, I would like to call upon Ms. Shina Kumar, Assistant Professor, AI Department, to kindly come on the stage and present the formal vote of thanks. Thank you. Respected chief guest of today's program, Shri Rohit Kashwani sir. Shri Rohit Kashwani sir, Superintendent of Police, Vidisha. Honorable Director of our institute, Dr. Y.K. Jain sir, esteemed deans, Dr. Ashish Manoria sir, respected heads of the departments, faculty members, staff, my colleagues, and dear students. Good morning to one and all. On behalf of the organizing committee of Samrat Uday 2025, I feel honored to extend a warm vote of thanks on this valedictory occasion. First and foremost, our deepest gratitude to our chief guest, Shri Rohit Kashwani sir,
for gracing this occasion with his presence and for his motivating words. We are also deeply thankful to our Honorable Director, Dr. Y.K. Jain Sir, for his continuous encouragement, vision, and support, which have been instrumental in the successful conduct of this program. At this moment, I wish to convey our special thanks to Dr. Ashish Manoria Sir, Chairman of the Orientation Program Samrat Uday 2025, whose leadership, guidance, and personal involvement ensured the smooth and effective execution of the 5-day induction program. I also extend my sincere appreciation to the organizing committee members, Dr. D.K. Shakya Sir, Dr. C.P. Singh Sir, Dr. Veena Datar Madam, our Registrar Sir, Shri Praveen Karkare Sir, Dr. Abhishek Jain Sir, Dr. Rashi Kumar Madam, Prof. Nikhil Mohan Vyas, and Shri J.K. Singh Ji for their tireless efforts and meticulous arrangements throughout the event. Our heartfelt thanks also go to the student volunteers, the Mirage Photography team, and the staff for their dedication and valuable support. Before I conclude, I sincerely acknowledge the cooperation of all our experts, respected deans, heads of the departments, faculty members, class coordinators, whose contribution played a vital role in making this program a grand success. Finally, I thank our students and parents for their enthusiastic participants, which made Samrat Uday 2025 truly memorable. With this, we bring the valedictory session to a close with gratitude in our hearts and optimism for the journey ahead. Thank you. And also, I cordially invite teaching and non-teaching for the lunch at KSH by 1 p.m. Thank you, ma'am, for your kind words. Now, dear friends, today marks the conclusion of Samrat Uday 2025. But remember one thing, this is not the end. It's just the beginning of your college life. अभी तो आसमान बाकी है, अभी तो उड़ान बाकी है, अभी तो पहचान बाकी है, और अभी तो बहुत इम्तिहान बाकी है, अभी तो बहुत इम्तिहान बाकी है. बहुत खूब कहा है. And as Eleanor Roosevelt said, the future belongs to those who believe in the beauty of their own dreams. Yes, friends, Samrat Uday 2025 ends today, but your journey as proud SATians begins here and now. With these words of gratitude, we bring today's valedictory ceremony to a graceful close. Thank you once again for being a part of Samrat Uday 2025. अब मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रगान के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे वंदे भारत माता की. Thank you. Jai Hind.